Hello friends, welcome back to my channel. Today in this video, we will start with the chapter The 100 Dresses Part 1. This chapter is based on two parts. Before starting the chapter, I would like to ask you something. Do you all judge people on the basis of their money, wealth, dressing style, about their behavior? If yes, it's not good. We should not judge people whatever they are, whether on the basis of their money, whether rich or whether poor, whether their dressing style, what they are wearing, what they are not wearing. We should never mind all that. We should never judge all people. If yes, we should correct it today by itself, because it's not good to judge people. It hurt their feelings when we judge people according to their money, wealth, and friends. We should not judge our friends, anyone, maybe it's friends, family, anyone we meet. We should not judge anyone based on their money and all. Okay, this story is also based on this fact that Wanda Petronsky, who was a young Polish girl, she was from Poland, and she was judged by her friend Maddie and Peggy on the basis of their clothes, because she was a poor girl and she could not afford beautiful dresses. So she always wears the same dress and came to school always, and their friends always mocks at her. हमेशा उसकी दोस्त उसके मजाक उड़ाया करते थे कि तुम हर दिन क्या एक ड्रेस पहन कर आती हो, कल भी तो तुमने यही वाला पहना था. लेकिन वांडा always used to say कि I have 100 dresses and 60 shoes all line up. But their friends were astonished, surprised कि how this poor girl can have 100 dresses, and if she has 100 dresses, then why she is not wearing. All the friends used to wonder and always makes fun of her. Okay, and Maddie was also a poor girl, and Peggy was she was not a good girl. She always makes fun, and Peggy and Maddie both were best friends. Maddie was also a poor girl. She always supports Wanda, but she was a best friend of Peggy, and she always also wonders how she is having 100 dresses. So at last there is a trick. Ki you will all be able to know कि 100 dresses, you will all be must wondering, right? आप लोग भी सोच रहे होंगे कि एक poor girl है, उसके पास 100 dresses and 60 shoes कैसे हो सकते हैं. Yes, this is the obviously questioned. यस सबको ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा अपने माइंड में. बट यस ये क्लियर ये है, ये ट्विस्ट ये है स्टोरी में कि वो एक 100 ड्रेसेस जो है वो एक ड्राइंग कंपटीशन होता है, उसमें वो 100 ड्रेसेस ड्राइंग की बात कर रही है. एक 100 ड्रेसेस जो होता है ना, वो सारे 100 पीस ऑफ पेजेस में 100 ड्रेसेस का ड्राइंग करती है. एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इतना वो अमेजिंग एंड इतना वो अच्छा अट्रैक्टिव ड्रेसेस बनाती है कि शी वन द कॉम्पिटिशन. And each of her friends was amazed कि 100 ड्रेसेस, यही वाली 100 ड्रेसेस के बारे में वांडा हमेशा बात किया करती थी. सो द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज़ कि वी शुड नेवर मेक फन ऑफ अ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लोथ्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिच एंड वेल्दी. इट्स नॉट आर राइट. हमारा कोई हक नहीं बनता है कि हम किसी को उसके कपड़ों के बेसिस पे, उसके रिच है, अमीर है या गरीब, उसके बेसिस पे हम जज करें. हम स्कूल पढ़ने के लिए आए हैं. वी आर नॉट गोइंग टू डू ऑल दैट. ओके, वी शुड रिस्पेक्ट. फ्रेंड्स में भी रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है. वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर वेदर दे आर पुअर और रिच. ओके, सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद दिस स्टोरी. Today, Monday, Wanda Petronsky was not in her seat. But nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence.
Okay, today Monday, the writer is trying to say that today is Monday and Wanda is not in her seat, she is not in the classroom, and nobody, even her friends Peggy and Madeline, is also not even noticed her absence. वो लोग भी नहीं, मतलब ये उसके absence को वो नहीं पहचान रही है कि वो आज नहीं क्यों नहीं आई है. Usually Wanda sat in the next seat next to the last seat in the last row of the room 13. वो जो क्लासरूम में बैठते थे उसका रूम 13 था. वांदा जो है हमेशा कहाँ बैठा करती थी? लास्ट सीट इन द लास्ट रो. ओके, लास्ट रो में लास्ट सीट रूम 13 में बैठा करती थी. शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और वो कॉर्नर ऑफ द रूम में सबसे कोना में रूम में बैठी हुई रहती थी. वेयर द रफ बॉयज़ हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट. और वो हमेशा कोना में बैठी हुई रहती थी, और कोना में वहाँ बैठी रहती थी जहाँ पे सारे रफ बॉयज़ मीन्स नॉटी बॉयज़ बैठे रहते थे जो कि कभी अच्छे मार्क्स नहीं लाते थे. द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर दे वेयर स्कफरिंग ऑफ फीट, मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सेड. और वो कह रहे हैं कि जब भी, मतलब वो नॉटी बॉयज़ थे तो कभी पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे. स्कफलिंग ऑफ फीट, हमेशा पैरों की आवाज़ करते थे. रोर्स ऑफ लाफ्टर, हमेशा ज़ोर ज़ोर से हंसा करते थे जब भी कभी कुछ हंसी मजाक वाली बात होती थी. एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और बहुत सारा गंदगी और मड कीचड़ पूरा रहता था फ्लोर पे. वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी. और यहाँ बताया जा रहा है कि वांडा इसलिए वहाँ नहीं बैठती थी क्योंकि वो भी रफ, वो भी नॉटी और वो भी नॉइजी थी, शोर करने वाली थी. ऑन द कॉन्ट्ररी, इसलिए वो बैठती थी. शी वॉज वेरी क्वाइट. ऑन द कॉन्ट्ररी, यहाँ पे वांडा का कैरेक्टर के बारे में बताया, अपने बिहेवियर के बारे में बताया जा रहा है कि शी वॉज वेरी क्वाइट, वो बहुत शांत थी. एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, और कभी ही कभार कुछ बोला करती थी. एंड नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ और लाउड, और कभी भी किसी ने उसे ज़ोर से हंसते हुए नहीं देखा. समटाइम्स ही ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रूड सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वाज ऑल. कभी कभी वो अपना थोड़ा सा हंसती थी और बस वही था, बस वैसे ही वो करती थी. नो बडी न्यू एग्जैक्टली वाई वांडा सैट इन दैट सीट. और कोई भी नहीं जानता था कि पूरे अच्छे से कि वांदा आखिर वहाँ क्यों बैठती थी. उसे जब पता है वहाँ नॉटी बॉयज़ बैठते हैं तो वहाँ क्यों बैठती थी. Unless it was because she came all the way from Buggins Heights and her feet was usually caked with dry mud. कह रहा है कि यहाँ पे कि इसलिए वो बैठती थी वहाँ के क्योंकि शी केम ऑल द वे फ्रॉम बुगिन्स हाइट. बुगिन्स हाइट एक प्लेस का नाम है जहाँ से वो आती थी. एंड उसका पैर जो है पूरा केक्ड विथ ड्राई मड, पूरा उसका पैर में कीचड़ लग जाता था. एंड बट नो वन रेयरली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की. लेकिन कोई भी वांडा के बारे में उतना नहीं सोचता था. वन शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, जब भी वो अपने कॉर्नर में बैठती थी. ऑलवेज सब लोग सोचते थे कि बैठ रही है, ठीक है. The time when they thought about Wanda was outside of school hours at noon time when they were coming back to school. और ये बता रहे हैं कि वो उस वक्त वांदा के बारे में सोचते थे जब वो आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स से स्कूल के बाद ख़त्म होने के बाद at noon time दोपहर में when they were coming back to school, वापस से जब वो स्कूल आते थे उस वक्त उसके बारे में सोचते थे. और कमिंग इन और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर द स्कूल बिगैन, और पहले ही जब क्लास हो जाता था उस वक्त उसके बारे में सोचते थे. व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 और इवन मोर, और जब 2 से 3 ग्रुप या होता था या उससे भी ज़्यादा होता था, वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड. या मतलब आते जाते कोई स्पेशल नहीं रहता था. जब कोई नहीं रहता था को जब दोपहर में जब वो स्कूल से आती थी तब लोग उसके बारे में सोचा करते थे. देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विथ हर, और फिर उसके बाद वो वांदा के लिए वेट करते थे ताकि उसका वो मजाक उड़ा सके क्योंकि वो शांत थी ना फ्रेंड्स. ओके, द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वॉज नॉट इन स्कूल. नेक्स्ट डे दूसरे दिन क्या होता है ना, ट्यूसडे में वांडा स्कूल में नहीं होती है आइदर. एंड नो बडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और आज फिर उसका एब्सेंस
स्कूल में नहीं आई, और किसी ने नोटिस नहीं किया, किसी ने नहीं नोटिस किया कि वो एब्सेंट है. बट ऑन वेडनेसडे पेगी एंड मैडी हु सैट डाउन in front of with other children who had got good marks and two different who didn't track in a whole lot of mud did notice that Wanda was not there. लेकिन वेडनेसडे में पेगी और उसकी मैरी जो उसके फ्रेंड्स थे, वो जो दूसरे फ्रेंड्स के साथ बैठा करते थे, हु गॉट गुड मार्क्स, जो अच्छे मार्क्स लाया करते थे, एंड हु डिड नॉट ट्रैक इन द होल लॉट ऑफ मड, और वापस से जिसके पैर में कीचड़ नहीं लगा करते थे, डिड नॉट नोटिस दैट वांडा वॉज नॉट देयर. और वो लोग भी नोटिस नहीं करते थे कि वांडा वहाँ नहीं है. पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल. पेगी उसकी एक फ्रेंड है जो कि मोस्ट पॉपुलर थी, सब कोई उसको पहचानता था. शी वॉज प्रीटी, शी हैड मेनी प्रीटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली. शी वॉज प्रीटी, वो प्रीटी थी, अच्छी थी. मैनी प्रीटी क्लोथ्स, बहुत अच्छी प्यारी थी. उसके पास प्यारे प्यारे कपड़े थे. उसके हेयर भी कर्ली थे, कर्ली हेयर थे, घुंघरेले बाल थे. मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड थी, सबसे क्लोज फ्रेंड थी. द रीज़न Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. और वो इसीलिए उस दिन वेडनेसडे के दिन इसलिए नोटिस किए पेगी और मैडी, क्योंकि वो वांडा के लिए हैड मेड देम, क्योंकि वांडा ने उसके लिए फिर स्कूल के लिए लेट करवा दिया. हो सकता है उसके लिए वेट किया करते थे. ओके, दे हैड वेटेड एंड she had waited for Wanda to have some fun with her and she just hadn't come. और उसके साथ कुछ मजाक करने के लिए, लेकिन वो आई ही नहीं. She just hadn't come, वो आई ही नहीं. Then often waited for Wanda Petrosky to have fun with her. वो हमेशा अक्सर वांडा का इंतज़ार किया करते थे ताकि वो वांडा के साथ मजाक कर सके. Okay, friends. Wanda Petrosky, most of the children in the room 13 did not have names like that. और Wanda Petrosky जो इसका नाम था वो बहुत टिपिकल नेम था, वो बहुत अजीब नाम था. मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 में जो सबसे बहुत सारे ज़्यादातर जो बच्चे थे, उसका नाम ऐसा नहीं था. दे हैड नेम्स ईजी टू से, उनका नाम बहुत आसान था बोलने के लिए, लाइक थॉमस, स्मिथ, एलन. दे वर वन बॉय हु वॉज नेम्ड Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny, but not funny in the same way that Petrosky was. और बोल रहे हैं कि एक बॉय था विलियम बॉन्स. पीपल सोचते थे कि ये इसका नाम बहुत फ़नी है, मजाकिया है, बट लेकिन उतना मजाकिया नहीं था जितना पेट्रॉन्स्की का. वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा के पास एक भी फ्रेंड्स नहीं थे. शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन. उसके एक भी फ्रेंड्स नहीं थे, इसलिए वो हमेशा स्कूल अकेले आती थी, वो घर वापस अकेले जाती थी. शी ऑलवेज वेयर वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिड नॉट हैंग राइट. और वो हमेशा फेडेड ब्लू ड्रेस, फेडेड एकदम फीका हुआ ब्लू ड्रेस का भी जो फेडेड है, उसका रंग हल्का पड़ गया है, वो वाला ड्रेस पहनती थी जो उसको अच्छा नहीं लगता था. इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली. वो क्लीन था लेकिन ऐसा लगता था कि अभी तक उसको आयरन किया हुआ नहीं, क्रश्ड रहता था. शी हैडंट हैड एनी फ्रेंड्स बट लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर. उसके एक भी दोस्त नहीं थी, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उनसे बात करती थी. समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन अ स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड. बोला जा रहा है कि उसकी एक भी फ्रेंड्स नहीं थी अक्सर, लेकिन बहुत सारे लोग उससे बात किया करते थे. समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड. कभी कभी उसको पूरे लोग घेर लेते थे स्कूल यार्ड में एंड शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स. और वो खड़े होकर देखती रहती थी कि छोटी छोटी लड़कियां जो है हॉपस्कॉच खेल रही है. हॉपस्कॉच एक गेम होता है जहाँ पे स्क्वायर टाइल्स हम बनाए रहते हैं, स्क्वायर बनाए रहते हैं, जैसे कित हम लोग उसको कह सकते हैं अपनी भाषा में. ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड, और पूरे हार्ड ग्राउंड में कित खेलते हुए बच्चे को देख रही थी. Wanda, Peggy would say in a most courteous manner. Wanda, as though she were talking to Miss Mason. और वो जैसे मिस मैशन से बात कर रही थी. Wanda, she would say, giving one of her friends a nudge. Tell us, how many dresses do you had hanging up in your closet? Peggy पूछती है कि
शी वर टॉकिंग, तुम मिस मैशन से बात कर रही थी, कितना तुम्हारे पास ड्रेसेस है वांडा? उसकी फ्रेंड्स पूछ रही है, मीन्स उसका मजाक उड़ा रही है, ठीक है। तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है वांडा उसमें हैंग किए हुए? वांडा कहती है 100। वांडा सेड 100, वांडा वुड से 100, exclaimed all the little girls incredulously. ओके, पूरे जब वो कहती है कि मेरे पास 100 है, तो सारे जो दोस्त होते एक्सक्लेम करते हैं, अचंभा में रहते हैं कि इन, और मतलब बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन, और जो छोटे छोटे लोग थे वो अपना कितकित खेलना छोड़ करके वो सुनते रहते थे। ये 100 और लाइन्ड अप, सेड वांडा, हाँ पूरा 100 है, पूरा सब रखा हुआ है अच्छे से, सेड वांडा, हाँ। देन हर थिन लिप्स ड्यूल टुगेदर इन साइलेंस, और उसके बोलने के बाद वो चुप हो जाती है। What are they like? All silk, I bet, said Peggy. और पैगी पूछती है कि कैसा है वो सारा, सब सिल्क है? I bet. हमको ऐसा लगता है कि सब सिल्क होगा। या ऑल सिल्क, ऑल कलर्स। तो वांडा कहती है हाँ सब सिल्क है, सब कलर के, हर रंग के हैं। वेलवेट टू, वेलवेट भी है। या वेलवेट टू, 100 ड्रेसेस, वांडा वुड रिपीट स्टॉडली, बोल रही है कि हाँ वेलवेट भी है, 100 ड्रेसेस भी है। और वांडा हमेशा कोई भी फीलिंग नहीं दिखाते हुए बार बार बोल रही, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सारा मेरे कबर्ड पे लाइंड अप है, रखा हुआ है। देन दे वुड लेट हर गो, और वो उसको जाने देते थे। एंड देन बिफोर शी वुड गॉन वेरी फार, दे कुड नॉट स्टॉप, they could not help bursting into shrieks and peals of laughter. और जैसे ही वो चली जाती थी थोड़ी दूर, वो सब सारे फ्रेंड्स खुद को रोक नहीं पाते थे हंसते हुए और चिल्लाते हुए, क्योंकि वो मजाक बना रहे हैं कि कैसे ये पुअर है, ये कैसे इसके पास 100 ड्रेसेस होती है, हो सकती है सिल्क भी बोल रही है, वेलवेट भी बोल रही है, नो इट्स नॉट पॉसिबल। 100 dresses, obviously the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. 100 dresses, वो बोल रही है कि 100 dresses, 100 dresses, obviously, क्या सच में? The only dress, जो only dress, ये अकेला ड्रेस वो हमेशा हर दिन पहन के आती है। So why did she say she had 100? वो कह रही है कि वो हर दिन एक ही ड्रेस पहन के आती है, तो वो क्यों कह रही है 100 ड्रेसेस है? क्या स्टोरी है, आखिर स्टोरी क्या है? हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड? 60 पेयर्स। अब उसके शूज़ के बारे में पूछा जाता है, तुम्हारे पास कितने शूज़ है? सब कहते हैं 60 पेयर्स, 60 पेयर्स है। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और सारा जो है लाइंड अप है। क्राइज ऑफ एक्सकग्रेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, और सब कहते हैं कि पूरा जो सब कह रहे हैं कि इतना 100 ड्रेसेस है, 60 पेयर्स है, सारा लोग एकदम कुछ ज़्यादा ही मतलब ज़्यादा बोल रही है ये सोच करके सब चुप हो जाते। ओह नो, इवन एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, ऑल कलर्स, ऑल लाइंड अप। और कहती है कि सारा जो पेयर है, हर 60 एक एक पेयर जो है ना, सब अलग है, सब अलग अलग कलर का है, ऑल लाइंड अप, सब लाइंड अप है। पेगी हु थॉट अप दिस गेम एंड मैडी हर इनसेपरेबल वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव। और कह रहे हैं कि पेगी हु थॉट अप दिस गेम एंड मैरी हर इनसेपरेबल फ्रेंड, पेगी और मैरी जो है वो बहुत क्लोज फ्रेंड थे। इनसेपरेबल फ्रेंड मतलब अलग ना होने वाले फ्रेंड, हमेशा कुछ भी हो जाए हमेशा साथ रहते थे। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड। और फाइनली जो है वांडा चली जाती है स्ट्रीट में, और आइज जो है डल रहता है, हर माउथ क्लोज, hitching her left shoulder every now and then it in the funny way she had, finishing the walk टू स्कूल अलोन, और वापस से मतलब स्कूल अकेले वो जाती है। पेगी वॉज नॉट रियली क्रूएल, पेगी जो है वो क्रूएल नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रेन फ्रॉम बुलीज, पेगी जो है ना वो सच में बैड गर्ल नहीं थी, वो छोटे छोटे बच्चों को बुलीज से बचाती थी। बुलीज वो होता है ना जब हम दूसरे को अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग दूसरे को हम बुली करते हैं, नीचा दिखाते हैं।
ओके एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, और वो बहुत घंटों तक रोती थी जब देखती थी कि किसी एनिमल के साथ मिसट्रीट किया जा रहा है, बुरा व्यवहार किया जा रहा है. इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, डोंट यू थिंक दिस इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड. क्रूअल? Cruel? Why did the girl say she had 100 dresses? Anybody could tell that was a lie. Why did she want to lie? And she wasn't such an ordinary person else. और वो कह रही है, Peggy, cruel? कौन कहा cruel? I'm not cruel. Why the girl said say, वो क्यों कहेगी मेरे पास 100 ड्रेसेस है? कोई भी कह सकता है कि ये झूठ है. Why does she want to lie? और क्यों वो झूठ बोल रही है? And she wasn't such an ordinary person, और वो कोई ordinary person नहीं है. Why did she have a name like that? Anyway, they never made her cry. और कोई बात नहीं, कभी उसको लोग ने रुलाया नहीं. As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. And और वो मैडी जो है, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा, मैडी का ही काम है वांडा से पूछने का हर दिन कि तुम्हारे पास कितना ड्रेस है, कितना हैट है, कितना दिस है, कितना दैट है, ये कितना है, वो कितना है. शी हैज़ बॉदरिंग हर, और शी हैड वॉज बॉदरिंग हर, और उसको बॉदर कर रहा है, उसको फ़र्क पड़ रहा था. मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ, और मैडी जो है वो खुद पुअर थी ना, इसीलिए उसको लग रहा था कि ये कैसे इसके पास इतना होता. शी यूजुअली वेयर समबडीज़ हैंड मी डाउन क्लोथ्स, और वो भी हमेशा हैंड मी डाउन क्लोथ्स पहनती थी, मतलब ओल्ड क्लोथ जो दूसरे को दिया हुआ होता था. थैंक गुडनेस शी डिड नॉट लिव अप ऑन बुगिन्स हाइट्स और हैव अ फनी नेम. और वो कह रही है कि भगवान का शुक्र है कि वो बुगिन्स हाइट्स में या फ़नी नेम उसका नहीं है. समटाइम्स व्हेन पेगी वाज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing to herself. कभी कभी जब पैगी वांडा से पूछती थी कि इन अ मॉकिंग पोलाइट वॉइस, मतलब हंसते हुए बोलती थी, मैडी फेल्ट एम्बेरेस्ड, मैडी जो है एम्बेरेस फील करती थी, बहुत अशेम्ड, शर्मिंदा फील करती थी. और स्टडी द मार्बल्स इन द पार्क, अपने हाथों में मार्बल पढ़ा करती थी. रोलिंग देम डाउन एंड सिंग नथिंग हर सेल्फ, और कुछ भी नहीं बोलती थी, मतलब वापस से रिप्लाई नहीं देती थी पैगी को. Not that she felt sorry for Wanda exactly, she would never have paid any attention to Wanda. और ऐसा नहीं है कि वो वांडा के लिए सॉरी थी exactly, she would never paid any attention to Wanda. वांडा के लिए उसने कोई ध्यान नहीं देता था. If Peggy hadn't invented the dress game, अगर पैगी इन ड्रेस गेम नहीं खेलती. But suppose Peggy and all others started in on her next. और अगर सोचो कि पैगी और लोग भी नेक्स्ट स्टार्ट कर, शी wasn't as poor as Wanda perhaps, but she was poor. लेकिन जो और वांडा की तरह कोई भी गरीब नहीं है, लेकिन वो बहुत पुअर है. Of course she would have more sense than to say that she had 100 dresses. और वो कह रही है कि उसके पास और भी कुछ वो कह सकती थी 100 ड्रेसेस के अलावा. Still she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda पेंट्रॉन्स्की, और वो विश कर रही है कि पैगी जो है ना वांडा को आप टीज़ नहीं करो. उसको भी ख़राब लग रहा है कि क्यों उतना वो वांडा को टीज़ कर रही है. टुडे इवन दो they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. आज वो लोग लेट है स्कूल में लेट से आई है, लेकिन वो बहुत खुश है कि वो वांडा को आज उसका मजाक नहीं बनाया. शी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, और वो अपना अरिथमेटिक मैथ्स के कुछ प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, मतलब बिना सोचे समझे उसने बनाया. 8 times 8, लेट्स सी.
She wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, "Hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has." और वो कह रही है कि पेग प्लीज़ पूछना बंद कर दो वांडा से कि तुम उसके पास कितने ड्रेसेस है। व्हेन शी फिनिश्ड हर अरिथमेटिक शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पेगी, और वो अपना जब मैथ्स पढ़ना ख़त्म कर दी तो वो एक नोट लिखती है पेगी को। सडनली शी पॉज्ड एंड शडर्ड, और वो चुप हो जाती है और एकदम शडर्ड हो जाती है। शी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड, अ न्यू टारगेट फॉर पेगी एंड द गर्ल्स, और वो स्कूल यार्ड में खुद को पिक्चर करती है और वो बोलती है कि एक न्यू टारगेट है, एक नया काम है पेगी और दूसरे गर्ल्स के लिए। पेगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट ऑल द ड्रेस शी हैड ऑन, और पेगी पूछ सकती है कि उसके पास कहाँ से सारे कपड़े आए जो वो पहनती है। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पेगीज ओल्ड वंस एंड दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज इट विथ, और पेगी माइट आस्क हर, पेगी पूछती है कि तुम्हारे पास इतने जो कपड़े हैं वो कितने आए, तो मैडी कहती है कि वो पेगी के ही कपड़े हैं जो मैडी के मदर ने उसको डिस्गाइज किया है, मीन्स अलग वे में, मतलब उसको नया ट्रिमिंग्स सो दैट नो वन इन द रूम वुड रिकॉग्नाइज इट। वो कह रहे हैं कि पेगी को मैडी के मदर ने उस कपड़े पेगी के कपड़े को उसको पहनने के लिए अलग अलग नया डिज़ाइंस दे करके चेंज करने की कोशिश किया ताकि रूम 13 में कोई पहचान ना सके कि ये पेगी के ही कपड़े हैं। इफ़ ओनली पेगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विथ वांडा, अब पेगी को ही डिसाइड करना होगा, पेगी को ही डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विथ, और पेगी को ही डिसाइड करना होगा कि फैसला लेना होगा कि अब हम लोग वांडा का मजाक ना उड़ाए। ओ वेल, मैडी रैन हर हैंड her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. Oh well, ठीक है। Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push her uncomfortable thoughts away. What difference did it make? और वो क्या अंतर हुआ है? Slowly Maddie tore into bits the note she had started, और Maddie जो है अपना जो नोट्स जो स्टार्ट करती है उसको फाड़ देती है। She was Peggy's best friend, और वो पेगी की बेस्ट फ्रेंड थी, and Peggy was the best liked girl in the whole room, और पेगी जो थी बेस्ट लाइक्ड गर्ल थी, सबको उसको पसंद करते थे। पेगी could not possibly do anything that was really wrong, she thought, और पेगी कुछ भी गलत नहीं करती थी जो कि दैट वॉज रियली, कुछ भी मतलब ऐसा काम नहीं करती थी जो गलत हो, शी थॉट, और वो ऐसा सोचती थी। एज पर वांडा शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बेगन्स स्ट्रीट, बेगन्स हाइट, एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, एंड और वांडा के लिए वो बस एक ऐसी कुछ सम गर्ल थी, ऐसी लड़की थी जो बॉगिन्स हाइट में रहती थी और अकेली रहती थी स्कूल में। बट शी scarcely ever said anything to anybody, लेकिन वो कभी भी किसी को कुछ भी नहीं कहती थी। The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses, और वो स्कूल में बस एक ही बात कहा करती थी, बस सिर्फ एक ही बात कहा करती थी कि 100 ड्रेसेस के बारे में। Maddie remembered her telling about one of her dresses. Maddie याद करती है कि वो अपनी एक ड्रेस के बारे में बात किया करती थी, पेल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग्स, एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ अ रेड शैश, और वो मतलब वो उसके 2 ड्रेसेस के बारे में उसको याद था, एक पेल ब्लू ड्रेस एंड एक ब्रिलियंट जंगल ग्रीन ड्रेस विथ रेड शैश। यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, और वो हमेशा बातें करती थी इसलिए वो उसको याद था, और वो कहती थी कि तुम तो इसमें क्रिसमस ट्री लगोगी। द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन, और वो मतलब उसकी जो गर्ल्स होती थी, वो जो फ्रेंड्स होती थी, वो कहा करती थी। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड 100 ड्रेसेस ऑल लाइन्ड अप इन द क्लोजेट, मैडी बिगैन टू वंडर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। और थिंकिंग अबाउट वांडा के बारे में सोचते हुए बोलती है, और उसके 100 ड्रेसेस ऑल लाइन्ड अप, मैडी बिगैन टू वंडर, मैडी सोचने लगती है आखिर कौन ये ड्राइंग और कलरिंग का कंपटीशन जीतेगा। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स। एक कॉम्पिटिशन होने वाला था फ्रेंड्स, जिसमें गर्ल्स लोगों को एक ड्रेसेस बनाना था, डिज़ाइनिंग करना था, और बॉयज़ लोग के लिए डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स था। प्रोबेबली पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, और वो लोग सब लोग को लग रहा था कि पेगी ही जीतेगी।
अब पेगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, क्योंकि पेगी जो है ना पूरे रूम में सबसे अच्छा ड्रॉ करती थी, सबसे अच्छा ड्राइंग किया, एटलीस्ट दैट्स व्हाट्स एवरीबॉडी थॉट, और यही जो था सब सोच रहे थे। She could copy a picture in a magazine or some film star's head so that you could almost tell who it was। और वो हमेशा उसके पैगी के बारे में बता रही है, उसके ब्रिलियंस के बारे में बता रही है कि वो पूरा कॉपी अपना पिक्चर में मैगज़ीन का कर लिया करती थी। सम स्टार्स हेड मतलब पूरे मैगज़ीन से पूरा पिक्चर एज इट इज़ कॉपी कर लेती थी। could almost tell who it was, और वो हम बता नहीं सकते थे वो कौन है। ओह मैडी वो श्योर पैगी वुड विन, ओह मैडी पूरी श्योर थी कि पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, तो ठीक है कल जो टीचर है वो अनाउंस करने वाली है कि विनर कौन है, तो देन दे वुड नो, फिर पता चल जाएगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, और बोल रही है कि द नेक्स्ट डे दूसरे दिन इट वॉज ड्रिजलिंग, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरी टू द स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, और मैडी और जो पैगी है वो हरी मतलब जल्दी स्कूल जाने लगे पैगी के अम्ब्रेला में। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डू नॉट वेट फॉर वांडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ द ओलिवर स्ट्रीट, और ऐसे दिनों में जब ज़्यादा ज़रूरत हो किसी फ्रेंड की तो ये लोग दोनों जो मैडी और पैगी है वो लोग नहीं वेट करते थे वांडा का ऑन द कॉर्नर ऑफ द ओलिवर स्ट्रीट में हमेशा वो लोग वेट किया करते थे, लेकिन जब बारिश हुआ करती थी तब वो लोग उसको वेट नहीं करते। द स्ट्रीट दैट वॉज फार अवे अंडर द रेलरोड ट्रैक्स एंड अप द हिल दैट लीड टू बगिंस स्ट्रीट, ओलिवर स्ट्रीट जो है उसी से आगे जाकर के बहुत दूर जाकर के रेल रोड ट्रैक्स रहते थे, अप द हिल मतलब ऊंची पहाड़ों पे जाकर के, और उसके बाद बगिंस हाइट्स आता था जहाँ पर वांडा रहती थी। एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज दैट टुडे वाज इम्पॉर्टेंट, और इसलिए लोग चांस नहीं लेना चाह रहे थे कि आज लेट हो, क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था सबके लिए, क्योंकि आज का विनर अनाउंस होने वाले थे ना। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क्ड पैगी पूछती है अपने फ्रेंड से कि क्या तुमको लगता है कि आज मिस मैसन जो है विनर्स जो है जो जीतने वाले आज उसका नाम अनाउंस करेगी। Oh, I hope so. The minute we get in, said Maddie. Of course, you will win, Peg. और मैडी कह रही कि हाँ मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है। जैसे ही वो मैडी पूछती हाँ मुझे, और वो कहती है कि ऑफ कोर्स तुम ही जीतोगी पैग। होप सो सेड पेगी ईगरली, और हो उम्मीद तो हम कर रहे हैं। होप सो सेड पेगी ईगरली, बहुत मतलब ईगरली कहती है कि हाँ एकदम सच में। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम दे स्टॉप शॉर्ट एंड गास्प्ड, और जो उसके बाद जैसे ही वो क्लास में एंटर करते हैं दे स्टॉप शॉर्ट, वो दम धीरे से मतलब और गहरी सांस लेते हैं। देयर वेयर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, पूरे रूम में ड्राइंग्स थे। ऑन एवरी लेज एंड विंडो शिल, और पूरे लेज में हर विंडो शिल में मतलब पूरा क्लास में ड्राइंग्स भरे हुए थे। डैजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट लैविश डिज़ाइंस, और डैजलिंग कलर्स थे, चमकते तड़कीले भड़कीले कलर्स थे, लैविश डिज़ाइंस थे, बहुत अच्छे एकदम ग्रैंड एकदम हाई फाई डिज़ाइंस थे। ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, और सारे ड्रॉन किए हुए थे ग्रेट शीट्स ऑफ पेपर, बड़े बड़े शीट्स ऑफ पेपर में। दे मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, और ये सारे पूरे 100 लग रहे थे। ऑल लाइंड अप, पूरे लाइंड अप एक एक करके लगे हुए थे सब। दे मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट, और ये पूरे ड्राइंग इसी कॉन्टेस्ट के लिए ड्राइंग लग रहा है किसी ने किया है। दे वेयर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विस्टल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली। दे वेयर, हाँ ऐसा लग रहा है कि पूरे 100 ही है। एवरीबडी, पूरे लोग शांत हो गए और विस्टल करने लगे, सीटी बजाने लगे और मर्मर करने लगे, मतलब पूरे मतलब एक दूसरे से धीरे धीरे बातें करने लगे, फुसफुसाने लगे कि आखिर ये क्या है। एज सून एज द क्लास हैज़ असेंबल, जैसे ही सारे लोग जमे हुए क्लास में, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स। जैक बेगल्स हैड वन फॉर द बॉयज़, जैक बेगल्स ने
बॉयज़ में जीता है। शी सेड हिज डिज़ाइन फॉर एन ऑनबोर्ड मोटर वाज ऑन एग्जीबिशन इन द रूम 12 अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल दी अदर बॉयज़। और बोल रही है कि बॉयज़ में जैक बैगल्स ने जीता है, उसका जो डिज़ाइन है एग्जीबिशन में, मोटर एग्जीबिशन में, वो रूम 12 में लगा हुआ है बाकी सारे बॉयज़ लोग के साथ। एज फॉर द गर्ल्स शी सेड ऑल्दो जस्ट 1 or 2 sketches were submitted by most। कह रही है, मैम कह रही थी, और लड़कियों की जब हम बात करें, सब ने 1 या 2 ही सबमिट किया था बाय मोस्ट ऑफ 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर। और बोल रहा है कि 1 और एक जो गर्ल है, मतलब एक लड़की जो की वजह से रूम 13 को प्राउड फील करना चाहिए पूरा। इसके दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस, और ये जो एक लड़की जो थी 100 डिज़ाइंस बनाई, पूरा 100, ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, पूरा अलग था और पूरा खूबसूरत था। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़। और इन द ओपिनियन ऑफ द, और जजेस की जब बात करें, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्दी, बोल रहा हर एक डिज़ाइन जो था वर्दी था, तारीफ़ के लायक था, विनिंग द प्राइज़। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रॉन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। और बोल रही है कि हम बहुत हैप्पी है, बहुत खुश हम हैं कि वांडा जो पेट्रॉन्स्की है वो विनर है गर्ल्स मेडल की। सी गर्ल्स, यही 100 ड्रेसेस की वो हमेशा बातें किया करती थी, जो वो ड्राइंग करके रखी थी, मतलब उसके पूरा आइडिया थे कैसे कैसे कपड़े डिज़ाइंस के होते हैं। अनफॉर्चुनेटली अब हम आगे बढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली वांडा हैड बीन एब्सेंट फॉर स्कूल फॉर सम डेज। और किसी रीज़न से वांडा जो है एब्सेंट है स्कूल में कुछ दिनों के लिए, एंड इज़ नॉट हियर टू रिसीव अप्लॉज। और यहाँ वो तारीफ़ लेने के लिए दैट इज़ ड्यू टू हर, और वो उसके लिए ड्यू है। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो, और उम्मीद करते हैं कि कल वो आ जाए। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्विजाइट ड्राइंग्स। और बोल रही है कि अब क्लास तुम अंदर धीरे धीरे आ सकते हो और उसके पूरे डिज़ाइंस को, एक्विजाइट डिज़ाइंस मीन्स पूरा एकदम ऐसा डिज़ाइन जो ऐसा लग रहा हो बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया हो। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अपलॉज, जो चिल्ड्रन जो है पूरे जो तालियां बजाने लगे, क्लैप करने लगे। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर। और लड़कों को भी मौका मिला कि वो उसकी पेंटिंग्स को देखे क्लास में। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विसल, और जैसे उसके देखे अपने मुंह पर हाथ रख करके, मतलब हाथ मुँह रख करके सीटी बजाने लगे। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, और लेकिन वो उसके लिए ड्रेसेस में इंटरेस्ट नहीं थे, फिर भी वो बहुत खुश हो रहे थे। लुक पैग विस्पर्ड मैरी विस्पर करती, लुक देखो पैग, there's the blue one she told us about, isn't it beautiful। देखो पैग वो ब्लू ड्रेस देखो जो हमेशा बातें किया करती थी, क्या ये खूबसूरत है ना, कितना खूबसूरत है ना। यस सेड पैगी, हाँ बहुत खूबसूरत है। एंड हियर्स दैट ग्रीन वन बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, और हम सोच रहे कि हम बना सकते हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, इससे हमें ये सीख मिलती है, ये मॉरल मिलती है कि वी शुड नॉट नेवर मेक फन ऑफ अदर्स वट एवर द सिचुएशन ऑफ द पर्सन इज़। जैसे पर्सन है वैसे ही हमको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसको जज नहीं करना चाहिए हमको उसके क्लोथ्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें उसका टैलेंट के बारे में पता नहीं कि वो क्या क्या जानता है। अगर वो आज वांडा क्लास के सामने होती तो वो लोग बहुत ज़्यादा उसको और तारीफ़ करते, बहुत खुश होते, बहुत शर्मिंदा एक्चुअली फील करते कि जिसका हम मजाक उड़ा रहे हैं उसने पूरा ड्रेसेस बना दिया, उतना सारे डिज़ाइंस उसको कैसे पते होंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स वी शुड नेवर ट्राई टू मेक फन ऑफ अदर्स, चाहे वो जितने शांत है, जितने भी क्वाइट है, हमें उसे इतने ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। और वी शुड नेवर ट्राई टू चेंज देयर बिहेवियर, और हमको सबके साथ फ्रेंडशिप करना चाहिए, चाहे रिच हो चाहे पुअर, क्योंकि friendship has no bars or no caste at all, right? Friendship just sees the loyalty and
दोस्ती में ये सब नहीं देखा जाता है कौन रिच है कौन पुअर है। दोस्ती दोस्ती होती है एंड इसे हमें निभाना चाहिए और हमें दोस्त की हेल्प करना चाहिए। ओके एंड उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी किसी को जज नहीं करेंगे। ओके क्योंकि जजिंग इज़ नॉट गुड वे। हमें पता नहीं होता ना उस पर्सन को कैसा फील हो रहा है। ओके वी शुड नेवर इंसल्ट अदर्स इन शॉर्ट। Thank you. If you do like my videos and want the videos like this, please like and subscribe my channel. Thank you.